So today, since there is introduction to vectors, and we have already seen vectors in class 11. So what we can do here is see some of the application of introductory vectors. So first of all, you all know what is a vector quantity, what is a scalar quantity. Vector is a quantity, it is a physical quantity which has direction and has magnitude, and also follow the law of vector addition. What is the law of vector addition? That if there is a vector A and there is a vector B, and if you want to find A plus B vector, then that vector can be obtained by putting the vector tail of the vector B on the head of the vector A like this, and then joining the tail of vector A with the head of vector B, and we call this as A vector plus B vector. I hope all of you know this triangle law of addition of vectors. Excuse me, sir. Sorry, Saksham. सर आप फिर से बता सकते हैं, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, आपने क्या करना है? मैं ये कर रहा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So the triangle law of vector addition is basically, if we take two vectors A and B like this, and we want to find the resultant vector A plus B, then what we have to do actually is, on the head of A, we put the tail of B. Sorry, this is the tail of B, not the head of B. And then joining the tail of A to the head of B, then this is called the vector A plus B. So I want to know this, all of you have studied triangle law of vector addition. Yes, sir. Okay. So if I ask you that there are two vectors, one vector is A, which is 2i minus 3j, and another vector is B, which is minus 4i plus 6j. So can you tell whether they are collinear or not? And how can we decide whether it is collinear or not? That means collinear means that they are lying on the same line, right? So this vector 2i minus 3j, and this vector, if we take minus 2 common from here, so this will become 2i minus 3j again. So can we say that the B vector is equal to minus 2 times of A vector? We can say like this, that B vector is minus 2 times of A vector. That simply means that if the A vector is directed like this, then the B vector is actually double of the A vector and in just opposite direction like this. So this is minus 2A, which is actually B. So we can say, yes, these two vectors are collinear. Is it okay? So how do we find that the vectors are collinear? So if there is a vector A and a vector B, and we can write B vector as some scalar or multiple of the A vector, this simply means that A and B are collinear vectors, right? They are lying on the same line. I hope it is okay. Anyone, any doubt here? No, sir. So first write these 2 points. One is triangle law of vector addition, and another is there is collinear
collinearity of vectors. How do we find the length of a vector? If AB is a vector and its components are I plus j plus 2k. Can you tell me what is its length? What is its magnitude? Under root I square plus J square plus C square and Root over 1 square plus 1 square plus 2 square. अगर हमारे पास वेक्टर है ai cap plus bj cap plus ck cap, then the magnitude of that particular vector, suppose this is a vector OA, the magnitude of that vector is root over a square plus b square plus c square. So your answer is correct. So this will be root over 6. This is the magnitude of AB. Basically what happens, if you remember, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, right? So if we take a point from origin, the distance OP is basically the length of a diagonal of a cuboid. So that would give you this value. अब इसी में अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कोई वेक्टर ए है, उसका मॉडुलस 3 है सपोज, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -2a वेक्टर? आज हम लोग बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वेक्टर्स कर रहे हैं, जो तुमने फिजिक्स में कर रखा है वही वेक्टर्स कर रहे हैं आज. ओके स्वांग, करेक्ट है तुम्हारा आंसर. तो ये बेसिकली -2 का जब तुम मॉड लोगे तो 2 हो जाएगा, एंड ए का मॉड इट विल बी 2 into 3 विच विल बी 16. ठीक है. yes sir. Okay, now if I give you a question which says that there is a triangle ABC and D is the midpoint of BC. The triangle ABC and D is the midpoint of BC. Then vector AD, the vector this one, D is the midpoint. Keep this in mind. Then they are saying that vector AD is equal to lambda times AB plus AC. So what should be the value of lambda? Can you find the value of lambda?
as you can see here that this is the AB vector, this one, and this is the AC vector, and this is the AD vector. This one is the AD vector. So AD is equal to लैम्डा टाइम्स AB प्लस AC अगर हो रहा है तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हो सकता है, ये कैसे हम निकालेंगे? तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी कैन से कि ये जो वेक्टर BC है, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूँ। तो ये जो C से लेके D तक वेक्टर है, ये हाफ ऑफ CD होगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, और D से लेके B तक जो वेक्टर है वो भी हाफ ऑफ CD ही होगा। अब इसके बाद अगर हम ABD ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ABD, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि AD प्लस DB इज इक्वल टू AB बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और अगर हम ट्राइंगल ACD लें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, राइट। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट वन को और सेकेंड वन को, तो AD प्लस AD 2AD हो जाएगा, प्लस DB प्लस DC इज इक्वल टू AB प्लस AC हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग टिल हियर? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर DB प्लस DC को जरा देखो। DB जो है ये हाफ CD, और DC जो है CD का ऑपोजिट है, मतलब DC इज इन दिस डायरेक्शन whereas DB is in this direction. This is DC, final point is C, initial point is D, and this is DB, final point is D, initial point is D, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि D is the mid point। तो हम कह सकते हैं कि DB is equal to minus of DC, which means that DB को अगर DC से ऐड करेंगे तो हमें आप मिलेगा 0, तो 0 वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब है 2AD प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस AC। अब हम अगर ये 2 वेक्टर से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो AD इज हाफ ऑफ AB प्लस AC। तो जो इसमें पूछ रहा है कि AD इज लैम्डा टाइम्स AB प्लस AC, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है? हाफ आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। इज इट ओके? Yes, sir. So this is how we can use triangle law of addition. ऐसे ही एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये भी हो सकता है। If angle between
A and B is theta, then angle between, first part says that minus A and minus B is question mark. Second part says minus A and B is what? Third part says A and minus B is this. हाँ, स्वांग ने आंसर दे दिया है, सही आंसर है। सक्षम, तुम्हारा आंसर नहीं सही है। हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, राइट। आसिया, तुम्हारा भी सही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर अगर इस तरफ डायरेक्टेड है तो माइनस ए जो होगा जस्ट इसके ऑपोजिट में डायरेक्टेड होगा, और माइनस बी जो होगा वो बी के ऑपोजिट में डायरेक्टेड होगा। तो by vertically opposite angle concept, we can say that this angle is also theta, and by linear pair concept, we can say this is 180 degree minus theta, and this is also 180 degree minus theta. Now you can say that minus a और minus b के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, माइनस a और b के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, और a और माइनस b के बीच में भी 180 डिग्री। Is it okay? Yes. Done.
if A is a non-zero vector, then how many unit vectors are collinear with A? Devang is saying 1, but 1 is not the correct answer. Swang is again saying 2. 2 is the correct answer. Can you give explanation? Yes, sir. A I cap and it's minus I cap. करेक्ट है. तो ए वेक्टर के से कोलिनियर अगर हम कोई यूनिट वेक्टर ढूंढते हैं, तो एक तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है. तो ए वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर, ठीक है. ये कोलिनियर विथ ए होगा. मान लो ये ए है, तो यूनिट वेक्टर जो होगा यूनिट मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में होगा. और कोई वेक्टर हो सकता है जो कोलिनियर विथ ए हो? हाँ, हो सकता है. अगर हम माइनस ए की बात करें तो माइनस ए बाई ए का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, माइनस ए का. तो ये वाला वेक्टर भी ए के कोलिनियर है. फर्दर अगर तुमसे ये बोला जाता कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो हम कहते कि दिस इज अ पैरेलल वेक्टर एंड दिस इज एन एंटी पैरेलल वेक्टर. लेकिन कोलिनियर तो दोनों ही हैं. So both are collinear. So there will be total 2 unit vectors which are collinear with A. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. Please note this down. So what are direction cosines? ये एक टॉपिक है जो हम लोग 3D में भी पढ़ेंगे. और हम लोगों ने क्लास 11th में जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें पढ़ा भी था डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, इफ यू रिमेम्बर. तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? इफ वी टेक अ लाइन और वो लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है. मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बन रहा है और जेड के साथ गामा बन रहा है, ठीक है. अगर हमें ऐसे देख सकते हैं, इसके पैरेलल हम ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन अगर बना दें तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज गामा. थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, नॉट 2 डायमेंशनल लाइक दिस बोर्ड, ठीक है. तो इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर है. तो एक्स एक्सिस को तुम समझ सकते हो कि वो प्लेन ऑफ द बोर्ड के बाहर आ रहा है. तो एक्स वाई जेड जो है 3 डायमेंशनल फिगर है. तो डायरेक्शन कोसाइंस होता था कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कॉस, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कॉस अगर लेंगे तो वो, इसको हम एल कहते थे, इसको हम एम कहते थे, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कॉस एन कहते थे. तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन. और प्रॉपर्टी इसकी क्या होती थी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So basically, अगर do you remember this or you have forgotten? सर एक बार फिर से रिपीट. Okay. देखो, कोई भी लाइन हम ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है. अगर हम इसका कॉस ले लेंगे तो कॉस अल्फा
कॉस बीटा कॉस गामा को हम एक वैल्यू से डिनोट करते हैं, एल एम और एन से। तो ये जो एल एम एन का कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और उनके बीच में ये रिलेशन होता है। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11 में एक चैप्टर था, उसमें हमने ये किया था। इज दिस क्लियर? यस सर। इसके डेरिवेशन में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा डेरिवेशन देखना होगा तो तुम क्लास 11 की एनसीईआरटी देख लेना, उसमें इसका डेरिवेशन बहुत आराम से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। उसमें कुछ नहीं है, क्यूबॉइड बनाएंगे, क्यूबॉइड का जो कंपोनेंट होगा कॉस अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वैसे ही करके प्रूफ हो जाता है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस of I cap, can you tell me? Many answers have come. 0, 90 and 90. Section is saying 1. Okay. 1 क्या है? सेक्शन एल है, एम है या एन है? और स्वांग तुमने तो डायरेक्शन कोसाइंस L. नहीं लिया है, डायरेक्शन एंगल्स ले लिया है। हाँ, अब ठीक है स्वांग तुम्हारा भी, और सेक्शन तुमने एल को 1 लिया है, दैट इज करेक्ट। एम और एन क्या होंगे? 0. हाँ सही है सेक्शन। तो बेसिकली अगर हम आई वेक्टर की बात करें तो आई कैप जो वेक्टर होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका एंगल जो एक्स एक्सिस से बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो जो एल होगा वो होगा कॉस ऑफ 0। अगर हम वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल देखें तो 90 डिग्री होगा, तो एम हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। और अगर एन के साथ इसका एंगल देखेंगे, जेड के साथ इसका एंगल देखेंगे, तो आई का जेड के साथ, आई मतलब एक्स एक्सिस का, जेड के साथ भी 90 होता है, तो कॉस ऑफ 90 होगा। सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0। तो 1 0 0 इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब ऐसी ओरली तुम बता सकते हो, अगर जे कैप होगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? M equals to 1. m equal to 1 and ln will be 0। तो Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें इस तरह का देता हूं कोलिनियरिटी के ऊपर, if the point 60 I cap plus 3 J cap comma 40 I cap minus 8 J cap comma lambda I cap
माइनस 52j कैप, ये 3 वेक्टर्स हैं एंड दे आर सेइंग कि इफ दीज 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, नहीं, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेक्टर नहीं पॉइंट, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड की थ्योरी बता देता हूँ तो तुम्हें ध्यान नहीं होगा तो। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है और ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि दे आर ऑन द सेम लाइन, दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ए बी वेक्टर लेते हो, मतलब जो ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, और बी सी वेक्टर लेते हो जो बी पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो दे शुड बी कोलिनियर वेक्टर्स। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर then there are 3 points, and if the vectors are collinear then there are 2 vectors made of taking 2 points at a time. Is this clear? Yes. So if you prove that AB is equal to some constant times BC, then that means that they are collinear. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम्हें करना है, पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। तुम ऐसा मान सकते हो कि दिस इज ए पॉइंट, तो ओ ए वेक्टर है ओरिजिन से, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी। तो अगर ए बी वेक्टर निकालना है जो कि ए को बी में ज्वाइन कर रहा है, तो फाइनल के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल के पोजीशन वेक्टर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए इज ए बी। ओ बी क्या है, 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और ओ ए क्या है, 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो माइनस 60 आई कैप माइनस 3 जे कैप। So this will be equal to minus 20 I cap minus 11 J cap। तो ये तुम्हारा ए बी वेक्टर हो गया। अगर हम बी सी वेक्टर की बात करें तो बी सी वेक्टर के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर हो जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो ओ सी लैम्डा आई माइनस 52J, और ओ बी जो है 40I, तो ये माइनस 40I हो जाएगा, प्लस 8J हो जाएगा।
तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 40 आई कैप, और माइनस 52 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 44 जे कैप। तो बेसिकली एक ए बी वेक्टर ये हो गया हमारे पास, और एक बी सी वेक्टर ये हो गया हमारे पास। अब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर अगर हैं, इफ दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी। ए बी जो है वो -20 आई कैप -11 जे कैप है, और यहाँ पर लैम्डा ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुआ है, इसलिए हम वहां पे लैम्डा ना लेके के ले लेंगे। तो दिस इज के टाइम्स 1 minute. Proceed with this. I will receive a call which is coming just now. Okay, someone has given answer lambda is equal to -40 by squaring. Let us check. So AB is -20 I cap -11 J cap is equal to K times BC. BC is lambda -40 I cap -44 J cap. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर जो है सम कांस्टेंट टाइम्स ये वेक्टर है, तो इन ये दोनों का जो कंपोनेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि -20 जो आई कैप का कोफिशिएंट है, और लैम्डा -40 जो आई कैप का उधर कोफिशिएंट है, उसका रेशियो -11 जे कैप का जो कोफिशिएंट है, -44 जे कैप, वो बराबर होंगे। के तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4। सो लैम्डा -40 इज इक्वल टू -80। सो लैम्डा इज इक्वल टू -40। हाँ, ठीक आंसर आया है तुम्हारा। सक्षम, तुम्हारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लगता है, इसलिए तुम्हारा 120 आ गया। यस। Is this clear to everyone? यस। Yes, sir. Okay. अच्छा, ये बताओ कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस तीनों से बराबर एंगल बना रही है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो क्या होगा?
हाँ शिवांग, तुम्हारा आंसर सही है। बस तुम्हें वो उसको तीनों में लिखना होगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। सक्षम, यहाँ पर दोनों आ सकता था, +-1/√3, लेकिन सिंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ और पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस के साथ एंगल के बारे में बात कहा गया है, इसलिए हम +1/√3 ही लेंगे। L इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, N इज ऑल्सो कॉस ऑफ अल्फा। तीनों के साथ सेम एंगल बन रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि L² + M² + N² 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ cos² अल्फा 1 हो जाएगा, जिससे cos अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/√3 निकल के आएगी विद अ प्लस एंड अ माइनस साइन। तो इसमें से माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस वाला करेंगे, क्योंकि हम प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल ले रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। Yes. Now again we will come to a question on collinearity. Let us say उससे पहले एक क्वेश्चन वेक्टर एडिशन पे भी ले सकते हो। If A and B are two adjacent vectors of a regular hexagon, find the vector along other sides of the hexagon. ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि हमारे पास एक हेक्सागन इस तरीके से है, ठीक है। इसमें दो एडजेसेंट वेक्टर्स, एक ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, गिवन है। तो बाकी के जो चार बच रहे हैं साइड्स, उनको हम क्या लिख सकते हैं? शिवांग, -a -b तुम जो कह रहे हो वो DE हो सकता है -a, और EF हो सकता है -b, लेकिन CD और AF के बारे में तो बताना है। ये दोनों तो आसान है। ये वाला जो DE है, दिस इज कोलिनियर विथ AB, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो -a हो जाएगा। और जो EF है
वो बी के पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल है, तो माइनस बी हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट सी डी? सी डी निकल आएगा तो एफ ए भी निकल आएगा, उसका भी निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज सी डी, व्हाट इज सी डी? एनीथिंग? नहीं, एनीथिंग तो नहीं हो सकता। जो एसी है पहले ये निकालो, एसी। एसी क्या होगा? एसी विल बी सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस बी। होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। यस सर। अब हमें निकालना है सी डी। एसी तो पता चल गया, अगर हम एडी निकाल लें तो हम सी डी के लिए सोच सकते हैं। एडी क्या होगा ये देखो, तो जो एडी है वो बी के पैरेलल है, एज यू कैन सी एडी इज पैरेलल टू दिस बी, लेकिन लेंथ में वो बी का डबल है। कैसे डबल है? क्योंकि इस फिगर को मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ, ये है एडी, ये है बी, ये है बीसी। पैरेलल टू बीसी है तो बी तो होगा ही, लेकिन उसका डबल होगा। डबल प्रूफ करने के लिए तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो लाइक दिस। तो अच्छा, डबल होगा या क्या होगा ये नहीं कह सकते, अभी आते हैं उस पे। ये वेक्टर है ए, राइट? ये वेक्टर ए है, और ठीक है, और ये वेक्टर हमें मिल गया है। एक मिनट, एक मिनट। ये वेक्टर तो ए है, लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं है। हाँ, एक चीज और, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है? सो इफ इट इज अ रेगुलर हेक्सागन तो इसके सारे साइड्स बराबर है, मतलब ए का जो मॉड होगा, जो लेंथ होगी, वो बी के लेंथ के बराबर होगी, राइट? तो मान लेते हैं कि दोनों की लेंथ एल के बराबर है, मतलब 6 साइड सारी की लेंथ एल है, बस डायरेक्शन अलग होने की वजह से अलग अलग वेक्टर बन गया है। इज दिस क्लियर? तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम बस लेंथ वाइज देखें तो दिस बी सी इज ऑल्सो एल, दिस ए बी इज ऑल्सो एल। तो अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में तुम्हें पता है कि दो साइड के बीच का जो एंगल होता है 120 होता है, ये उसका आधा है, तो दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये जो लेंथ आएगी, ये जो तुमने एम ड्रॉप किया है, तो जो एम लेंथ आएगी दैट विल बी एल cos 60, विच इज एक्चुअली एल बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी मान लो तुम एन ड्रॉप करते हो, तो सिमेट्री से तुम कह सकते हो कि जो एनडी लेंथ आएगी, वो भी एल बाई 2 आएगी, ठीक है? मतलब ये इतना पोर्शन एल बाई 2, और ये इतना पोर्शन भी एल बाई 2, और बीच का जो ये पोर्शन है वो तो बिल्कुल बी के कोलिनियर है और उसके पैरेलल है, तो ये एल है। तो जब तुम तीनों को ऐड करोगे तो जो एडी की लेंथ आएगी वो एल बाई 2 प्लस एल प्लस एल बाई 2, मतलब 2 एल आएगी, जो मैं कहना चाह रहा था। तो जो तुम वेक्टर एडी लिखोगे, अगर इसका वेक्टर लिखते हो तो 2 एल, और जो डायरेक्शन है वो बीसी के अलोंग है, जो वेक्टर बी है, तो उस केस में इसको लिख सकते हो एल मतलब बी वेक्टर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो एडी इज ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब इतना पहले नोट कर लो, फिर एक दो स्टेप और है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसका फिगर थोड़ा बड़ा और क्लियर बनाना।
So now by triangle law of vector addition, if we proceed, so we can say that AC plus CD is equal to AD, जिससे हम कह सकते हैं कि जो AC है वो अभी हमने निकाला है, ये A प्लस बी, और जो CD है वो तो हमें निकालना ही है, तो प्लस CD रहने देते हैं। और AD जो आया वो हमारे 2 टाइम्स ऑफ B आ गया। जो इतना मेहनत हमने किया वो यही तो किया ना, AD निकाल लेना। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू 2B माइनस बी इज B माइनस A। इसका मतलब है कि हमारा ये जो दो CD आया ये आ गया B माइनस A। ऑफ कोर्स जब AF लिखोगे तो A माइनस B कर दोगे। इट इज करेक्ट स्वांग, जो तुमने अभी भेजा था। सक्षम कह रहा है AD इज इक्वल टू 2BC होगा। हाँ सक्षम, AD इज इक्वल टू 2BC होगा, यही तो हमने प्रूफ किया है। सर उसका मॉड होगा ना, तो वेक्टर थोड़ी हो पाएंगे। और डायरेक्शन भी तो सेम है ना, दोनों का पैरेलल है। ओके ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लें। Yes. So everyone has written it. So can we conclude the session now? Yes, sir. Okay, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. This